Hello class 12th. This is the fourth part of chapter 6 stuffing. Today we'll be discussing difference between internal and external recruitment. One case study also we'll discuss, and then selection process will be discussing. So let us start. Internal recruitment refers to making use of existing staff to fill up vacant jobs, but external recruitment refers to searching for the employees from sources outside the organization. Okay. Second is choice. It provides limited choice, but external sources provides wide choices. Then economic. This internal recruitment is economic. It is cheaper as there is no cost of publishing vacancy, but external sources costly as lot of money is spent on publishing the advertisement. Okay, then time. Internal recruitment is less time consuming, but external sources very time consuming. Okay, it requires a lot of time. Then internal source motivates the existing staff to improve the performance, but it makes the existing staff dissatisfied. Which external recruitment, इससे क्या होता है, जो प्रेजेंट स्टाफ है उसमें एक डिससेटिस्फेक्शन आ जाता है कि हम में से कोई भी उतना सूटेबल है नहीं क्या. ठीक है, तो ये वाली डिससेटिस्फेक्शन फीलिंग उनमें आ जाती है. देन क्वालिटी. सो देर इज़ नो स्कोप ऑफ फ्रेश टैलेंट. इसमें इतनी ज़्यादा क्वालिटी नहीं आ पाती इंटरनल रिक्रूटमेंट में, बिकॉज फ्रेश टैलेंट नहीं आता. हियर एक्सटर्नल सोर्स में इट इन्फ्यूजेस न्यू ब्लड एंड न्यू टैलेंट. ओके, तो यहाँ पे क्वालिटी आ पाती है. नाउ लेट अस डिस्कस वन केस स्टडी. विल स्टार्ट रीडिंग द लास्ट 2-3 लाइन. नेम द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. मीन्स अभी दो सोर्स की बात की, इंटरनल और एक्सटर्नल. तो यहाँ पे सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट पूछा है. दैट कंपनी विल यूज टू फिल अप दिस पोस्ट एंड स्टेट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग दिस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. ठीक है, सोर्स पूछा है तो अब हमें पता चल गया कि कौन सा है, इंटरनल है या एक्सटर्नल, उसमें से फाइंड आउट करना है. नाउ लेट अस डिस्कस दिस केस स्टडी. ड्यू टू हिज हार्ड वर्क Himesh is working as a supervisor in a company. Due to his hard work, he is promoted to post of production manager. Now the post of supervisor is vacant and no one can be transferred or promoted to this post. Now name the source of recruitment the company will use to fill up this post. अब जो सुपरवाइज़र से जो मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर की पोस्ट तो कंपनी ने फिल कर दी है इंटरनल रिक्रूटमेंट से. ओके, बट अब जो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है कंपनी वो स्टार्ट करेगी, बिकॉज पोस्ट ऑफ सुपरवाइजर इज वैकेंट एंड नो वन कैन बी ट्रांसफर्ड और प्रमोटेड टू दिस पोस्ट. ओके, तो यहाँ पे कौन सा वाला सोर्स यूज़ किया जाएगा, तो यहाँ पे external source will be used for the recruitment of this post. Okay, and you have to mention 3 advantages, okay, of this source. Now advantages of this source 3 advantages are that it gives wider choice, it provides fresh talents, it instills competitive spirit, okay, it attracts qualified personnel. Any 3 you can give. Okay, now let us discuss the second component of staffing. Second component of staffing is selection. First we have already discussed, that is recruitment. Okay, recruitment was a positive process, but selection is a negative process. It is the process of identifying and choosing the best person out of a number of prospective candidates for a job. Prospective means to be. Okay, future, those who may become or may not future candidates. So it is a process of identifying the best person out of the prospective candidates.
In selection process, various steps are performed to eliminate the undesirable and unsuitable candidates and to select most suitable candidate. इसको negative process क्यों कहा गया है? क्योंकि बहुत सारे steps यहाँ पे लिए जाते हैं to eliminate undesirable candidates. Okay. Now selection process, let us discuss. So selection process, 8 points are there. Selection process and staffing process. It is also a most confusing point, children. Be very clear in your minds that for which process the question is asking. Is it asking for staffing process or selection process? ठीक है, ये बहुत ज़्यादा क्लियर होना है क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स बच्चों के यहीं कट होते हैं. पूछा है स्टाफिंग प्रोसेस के लिए और आंसर देते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का. Let us discuss selection process. 8 points are there. First is preliminary screening, then selection test, then employment interview, then reference and background checks, then selection decision, medical examination, job offer and contract of employment. Last में जो contract जो दिया जाता है उनको agreement letter दिया जाता है वो उसका contract होता है 1 साल के लिए 2 साल के लिए. ठीक है, ये contract होता है. अब डिस्कस करते हैं इसको डिटेल में. फर्स्ट स्टेप इन सिलेक्शन प्रोसेस इज प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग. अब स्क्रीनिंग क्यों होती है? इट इज़ डन टू एलिमिनेट अनक्वालिफाइड एंड मिसफिट कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन सप्लाइड इन एप्लीकेशन फॉर्म. ओके, जो भी मिसफिट कैंडिडेट्स हैं उनको पहले तो वहीं पे ही उनको वहाँ पे चेक करके और उनमें से सिलेक्शन हो जाएगा. प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हो जाएगी. उसके बाद में सेकंड स्टेप होगा सिलेक्शन टेस्ट. एन एम्प्लॉयमेंट टेस्ट इज़ अ मैकेनिज्म मीन्स पेपर पेंसिल टेस्ट और एन एक्सरसाइज विच एम्स एट मेजरिंग सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल्स. अब जहाँ पे कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो उनका पेन पेपर टेस्ट से उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है. जहाँ पे कम है वहाँ ज़रूरी नहीं है कि सिलेक्शन टेस्ट हो, बट उससे भी सेकेंड लेवल का स्क्रीनिंग हो जाती है. सम कॉमन टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टेस्ट आर, फर्स्ट वन इज़ एप्टीट्यूड टेस्ट, सेकेंड इज़ इंटेलिजेंस टेस्ट, थर्ड इज़ पर्सनालिटी टेस्ट, फोर्थ इज़ ट्रेड टेस्ट. ओके, सो and fifth one is interest test. So these 5 tests are very important, children, and case studies are also generally asked out of these tests. अब aptitude test क्या है? It is conducted to find out the potential of learning new job in the candidate. नया जॉब सीखने का क्या पोटेंशियल है, नया जॉब सीखने कितना जल्दी सीख सकता है. ओके, इट हेल्प्स टू नो हाउ ही विल परफॉर्म इन फ्यूचर. ओके, and these keywords please keep in mind: how he will perform in future and what is the potential of learning new job. ये तो हो गया aptitude test. अब intelligence test means it is important psychological test which measures the level of intelligence quotient. IQ means IQ level कितना है उसका measurement करता है. IQ indicates a person's learning ability और एबिलिटी टू मेक डिसीजन एंड जजमेंट्स. कहते हैं ना कि इसमें IQ बिल्कुल नहीं है, मीन्स उसमें डिसीजन पावर बिल्कुल भी नहीं है. ओके, या कोई भी जजमेंट नहीं कर सकता. उसकी लर्निंग एबिलिटी मीन्स लर्निंग न्यू थिंग्स. ओके, सो दिस इज़ व्हाट IQ मीन. ओके, सो 2 tests are done, aptitude test and intelligence test. थर्ड इज़ पर्सनालिटी टेस्ट. अब पर्सनालिटी टेस्ट क्यों कंडक्ट होता है? इट इज़ कंडक्टेड टू मेजर द personal characteristics such as values, beliefs, attitude, emotional stability, capacity to get along means mixing with others. पर्सनालिटी कैसी है मीन्स उसके वैल्यू, बिलीफ, उसके इमोशनल स्टेबिलिटी है ना, या उसकी मिक्सिंग होने की जो एबिलिटी है वो कैसी है. सो वेदर अ कैंडिडेट इज़ हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव अप्रोच. ठीक है, किसी बात को बहुत ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं लेता है, नहीं तो ऐसा कैंडिडेट को अगर सेलेक्ट कर लिया तो वापस ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी. ओके, सो वेदर अ कैंडिडेट इज़ हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव अप्रोच, हिज मोटिवेशनल लेवल एंड
इनिशिएटिव इज़ चेक्ड. ओके, कितना इनिशिएटिव लेता है, उसको इस तरह के क्वेश्चंस उसको पूछे जाते हैं. इफ़ सच टाइप ऑफ सिचुएशन सर्कमस्टेंसेज अराइजेज व्हाट विल यू डू. ओके, तो इससे उसका चेक किया जाता है उसकी पर्सनैलिटी कि ओवरऑल उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो कितना पॉजिटिव है या कितना नेगेटिव है. ओके, कितना ऑप्टिमिस्टिक है या कितना पेसिमिस्ट है. देन नेक्स्ट इज ट्रेड टेस्ट. अब ट्रेड टेस्ट क्या है? इट चेक्स द एग्जिस्टिंग स्किल्स ऑफ इंडिविजुअल. जो एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं, है ना, एट प्रेजेंट उसमें जो स्किल्स हैं उसको ये चेक करता है. इट मेजर्स द लेवल ऑफ नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी इन द एरिया ऑफ प्रोफेशन. अकाउंटेंट बनने जा रहा है तो अकाउंटेंट में एट प्रेजेंट अभी उसको कौन कौन सी चीज़ें आती हैं. जैसे उससे पूछा जाएगा उसको डबल एंट्री सिस्टम आता है या नहीं, या उसको टैली आता है या नहीं, या उसको और भी जैसे मीन्स फाइलिंग सिस्टम है वो आता है या नहीं. तो उसको ये सारा कुछ पूछा जाएगा, या ये सारा हो सकता है अगर कैंडिडेट ज़्यादा हो तो उसको इन क्वेश्चंस को उसको पेन पेपर टेस्ट में दे दिया जाए. ओके, सो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कंडक्टेड फॉर दिस ट्रेड टेस्ट. मीन्स टाइपिंग टेस्ट है, जैसे कि टाइपिंग की स्पीड कितनी है. ओके, ये भी एक ट्रेड टेस्ट का टाइप हो सकता है. अब डिफरेंस क्या है ट्रेड और एप्टीट्यूड टेस्ट में? ट्रेड टेस्ट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई प्रेजेंट स्किल्स ऑफ अ पर्सन, बट एप्टीट्यूड टेस्ट हेल्प्स टू मेजर एबिलिटी टू एक्वायर स्किल्स इन द फ्यूचर. फ्यूचर में कितनी स्किल्स वो एक्वायर करने की एबिलिटी उसकी है, कि लर्निंग कैपेसिटी कितनी है उसकी, न्यू थिंग्स सीखने की कितनी एबिलिटी है. ठीक है. एंड लास्ट वन इज इंटरेस्ट टेस्ट. इंटरेस्ट टेस्ट मीन्स which is conducted to find out the type of the job in which candidate has most interest. Okay, तो यहाँ पे उसको जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होगा उसका इंटरेस्ट यहाँ पे पूछा जाता है. व्हाट आर योर हॉबीज़. तो ये जो सारे क्वेश्चंस अगर किए जाते हैं तो इनका कोई ना कोई रीज़न है. ओके, सो दीज ऑल टेस्ट्स आर कंडक्टेड in selection process. Then remaining steps would come in employment interview, reference and background check. Okay, so all these things, remaining things we'll discuss in our next session. Till then, goodbye, God bless you.